Good morning, students. Today I will discuss the poem A Legend of the Northland. That is a folk story. There is no connection about the reality in it. Here, the poet is telling about a famous folk story which was told by the forefathers. A legend of the Northland. A legend of the Northland. Northland means somewhere in the north side there was a story. Away away in the Northland means कहीं दूर बहुत दूर Northland में where the hours of the day are few means that was the area where there is very cold. Okay, because in the area where there is cold the days are few means दिन छोटे होते हैं थोड़े होते हैं and the nights are so long in winter और रातें लंबी that they cannot sleep them through means पूरी रातों में आप सो नहीं सकते because they are too long. Where they harness the swift reindeer to the sledges when it snows. ऐसे एरियाज नॉर्थ साइड में अपर एरिया में जहाँ पे रेनडियर होते हैं जिनको स्लेजेस में बांध के लोग स्नो एरिया पार करते हैं. एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बियर्स कब्स. बियर्स कब्स मीन्स बच्चे कैसे दिखते हैं. बियर कब्स मीन्स भालू के बच्चे. मीन्स टू से ठंड में बच्चे इतना कवर होते हैं मोटे मोटे फर वाले कोट से, ऊपर सिर पे कैप, दूर से देखने पे वो बियर कप जैसे लगते हैं कि भालू के बच्चे हों. इन दियर फनी फरी क्लोथ्स, मजाकिया एंड फरी क्लोथ्स में दे टेल देम आ क्यूरियस स्टोरी. अब जो पेरेंट्स हैं वो उनको एक क्यूरियस स्टोरी सुनाते हैं. आई डोंट बिलीव इट्स ट्रू. According to the poet, he don't think that it's a true story. It's a folk story, and in a folk there is a combination of the reality plus imagination. But according to the poet, he didn't believe the story, and yet you may learn a lesson. So I tell to you. Though the poet is not believing that it's a true story, but he's telling only because you can learn a lesson, a moral lesson from that story. That's why he is telling that. Once when the good Saint Peter, एक बार की बात है जब एक संत पीटर lived in the world below and walked about it preaching just as he did, means saints का main purpose क्या होता है, to preach the world so that there may be peace everywhere. So the Saint Peter on his way is doing his work preaching. Okay, he came to the door of a cottage. जब उन्हें preaching करते करते काफ़ी देर हो गई तो उसके बाद वो एक दरवाजे पे, कॉटेज के दरवाजे पे आए. In traveling round the earth, दुनिया का चक्कर लगाते हुए where a little woman was making cakes, जहाँ पे एक छोटी सी औरत केक बना रही थी and baking them on the hearth, और उन्हें ओवन में बेक कर रही थी. Hearth means होता है a fireplace where you can bake the cakes, and being faint with fasting. Ab, as you know that the saint who was on the work of preaching didn't eat anything, so the saint was having the sense of faintness due to the fasting. For the day was almost done, मतलब पूरे दिन उन्हें प्रीचिंग करते करते हो गई थी और उसकी वजह से उन्होंने कुछ खाया नहीं था. दिन लगभग खत्म होने वाला था और कुछ ना खाने की वजह से वो बेहोश से हो रहे थे. He asked her, सेंट पीटर ने उस वुमेन से पूछा, इस वुमेन से, द वुमेन हु इज बेकिंग द केक इन द हार्थ, अ लिटिल वुमन, ओके, फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक्स टू गिव हिम अ सिंगल वन. सेंट पीटर ने उस स्मॉल वुमेन से कहा कि मुझे एक छोटा सा केक खाने के लिए दे दो. फॉर शी मेड अ वेरी लिटिल केक. अब उसने सेंट पीटर के लिए बहुत छोटा सा केक बनाया. But as it baking lay, she looked at it. लेकिन जैसे ही वो उस केक को बेक करती उसने उसे देखा and thought it seemed too large to give away. और उसके मन में आया कि ये देने के लिए बहुत बड़ा है. Therefore she needed another. तो उसने दूसरा बनाया. Needed means गूंथना, आटे गूंथने को कहते हैं.
and still a smaller one, उससे भी छोटा. But it looked when she turned it over as large as the first had done. लेकिन उसे ये इतना ही बड़ा लगा जितना बड़ा उसने पहले बनाया था. Then she took a tiny scrap of dough and rolled it flat and baked it thin as a wafer, and but she couldn't part with that. फिर उसने एक बहुत छोटा सा पीस लिया डो का. डो मीन्स जो आटे की लोई होती है उसको कहते हैं डो. ओके, और उसको छोटे पतले से पतला बेला, उसे रोल करा. उसके बाद उसने उसे एक वेफर जैसा बनाया. वेफर, आप यू नो स्टूडेंट्स, इफ यू ईट एनी टाइम अ वेफर, इट्स अ वेरी थिन लेयर. ओके, इतना पतला बनाया लेकिन वो उसको भी दे नहीं पाई. कुडंट पार्ट विद दैट, उसको भी दे नहीं पाई. For she said, my cakes that seem too small when I eat of them myself. वो कहती है, जब ये केक मैं खुद खाती हूँ तो मुझे छोटे लगते हैं, and too large to give away. लेकिन देने के वक्त ये बहुत बड़े लग रहे हैं. So she put them on the shelf. तो उसने उन्हें शेल्फ पे रख दिया. Then good Saint Peter grew angry, for he was hungry and faint. अब वो इन सब बातों को सुनकर और देखकर सेंट पीटर बहुत गुस्सा हो गए, क्योंकि वो हंग्री थे और बेहोश होने वाले थे. एंड श्योरली सच अ वुमन वाज एनफ टू प्रोवोक अ सेंट. और इस तरह की जो लेडी होती है वो किसी भी सेंट को गुस्सा लाने के लिए काफ़ी है. एंड ही सेड, सेंट पीटर सेड, यू आर फार टू सेल्फिश. तुम सेल्फिश से भी ज़्यादा सेल्फिश हो टू ड्वेल इन अ ह्यूमन फॉर्म. और तुम एक ह्यूमन बॉडी में रहने के लिए काबिल नहीं हो. टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर, जिसको फूड भी मिला है और शेल्टर भी. एंड फायर टू कीप यू वार्म, और तुम्हें फायर भी मिला है जो तुम्हें गर्म रख सके. नाउ यू शेल बिल्ड एज द बर्ड्स डू. अब तुम्हें ऐसे रहना चाहिए जैसे बर्ड्स रहते हैं. एंड शेल गेट यू स्कैंटी फूड, और तुम्हें थोड़े से थोड़ा खाना मिलना चाहिए. बाय बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग. बोरिंग एंड बोरिंग मीन्स खोदते जाओ एंड देन खोदते जाओ और फिर भी आपको खाना ना मिले. द डे इन द हार्ड ड्राई वुड. Then up she went through the chimney, never speaking a word, and out of the top flew a woodpecker, for she was chained into a wall. अब सेंट पीटर ने उसको एक कर्स दे दिया कि तुम क्योंकि बहुत सेल्फिश हो, जो एक छोटे से छोटा पीस भी नहीं दे पा रही है इन दिस ह्यूमन बॉडी, तो शी नीड नॉट टू बी इन द पार्ट ऑफ अ ह्यूमन बॉडी. शी शुड बी अ बर्ड who searched for food and food and food and then found a very little of that. तो वो एक चिमनी में से वुड पेकर बन के बाहर निकलती है. शी हैड अ स्कारलेट कैप ऑन अ हेड. उसके हेड पर एक स्कारलेट कलर का कैप होता है. एंड दैट वाज लेफ्ट द सेम, बट ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लोथ्स वर बर्न ब्लैक एज अ कोल इन द फ्लैम. बस वो केवल ही कैप रेड रह गया था, बाकी सब उसकी पूरी बॉडी और कपड़े सब ब्लैक हो गए थे क्योंकि वो चिमनी में से बाहर आई थी. एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय हैज सीन हर इन द वुड. और स्कूल बॉय मीन्स हर व्यक्ति उसको जंगलों में देख चुका था. हियर शी लिव्स इन द ट्रीज टिल दिस वेरी डे. और जो आज तक जंगलों में पेड़ों पर रहती है. बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड, जो एक छोटे से खाने के पीस को ढूंढने के लिए जंगल में स्ट्रगल करती रहती है. द मोरल ऑफ द लेसन दैट इफ यू आर हैविंग अ ह्यूमन बॉडी, यू शुड गिव अवे व्हाट यू हैव. If there is anyone needy comes into your onto the doorstep of your house, then you should be able to give. If you don't give, then the blessings of this body will be removed by you. अगर आप जो आपके पास है वो किसी के साथ शेयर नहीं करते हो, then you won't be able to avail this body. ओके स्टूडेंट्स, मैं एक पोएम और एक्सप्लेन कर रही हूँ. द सेकेंड वन इज नो मैन आर फॉरेन. ओके, द PDF is not available of this lesson, so I will explain you. This in the No Men Are Foreign. That's a beautiful story by James Kirkup. In this the poet wants to say that ये जितनी भी पृथ्वी है, इस पूरी पृथ्वी पर जितने भी लोग हैं, वो चाहे कलर से अलग हो, कास्ट से अलग हो, रिलीजन से अलग हो, छोटे हों बड़े हों, मोटे हों पतले हों, गरीब हो रईस हो, दे शेयर द सेम अर्थ.
same air they breathe, same food they eat, same body they are having, maybe differ shape of eyes, maybe differ shape of body, but the same organs they are having. So they are not foreign to each one of them. Means हम में से कोई भी एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं है, हम सब आपस में एक दूसरे से known हैं, because we are having the same body, same air we are breathing, and the same earth we are sharing. So that's why no man are foreign. In the very first stanza, the poet is saying, remember no man are strange, no country is foreign. कोई व्यक्ति अजनबी नहीं है, कोई देश विदेश नहीं है. Beneath all uniforms a single body beats. Beneath all uniforms means कपड़ों से मतलब है कि कोई किसी तरह का क्लॉथ पहनता है, कोई किसी तरह की फैब्रिक पहनता है, या फिर उसमें वैरायटी पहनते हैं, कोई सूट है, कोई साड़ी है, या कोई पैंट शर्ट है, जीन्स है, टॉप है. लेकिन हम जितनी भी यूनिफॉर्म पहन लें, हर यूनिफॉर्म के नीचे एक सिंगल बॉडी है जो कि सब में सिमिलर है, ऑर्गन्स सब में सिमिलर है. लाइक आस द लैंड आवर ब्रदर्स वॉक अपॉन. जैसे हम हैं वैसे ही हमारे सारे भाई इस पृथ्वी पर रहते हैं. इस अर्थ लाइक दिस इन विच वी ऑल शैल लाई. ये जो पूरी पृथ्वी है हम सब के लिए एक सी है जिस पर हम रहते हैं. एंड द सेकंड स्टेंजा, दे टू अवेयर ऑफ सन एंड एयर एंड वाटर. मीन्स हम में से कोई भी हो, छोटा बड़ा, ऊंचा नीचा, अमीर गरीब, रईस, काला गोरा, सांवला, नाटा, पढ़ा लिखा या अनपढ़, हम सब जानते हैं that there is a sun, there is a moon, the stars, okay, और उनमें हवा है और पानी है. are fed by peaceful harvests. और हम सबको खाना किन से मिलता है? फसलों से. ठीक है. by wars long winter starved, their hands are ours, and in their lines we read a labor not different from our own. मीन्स जो फसलों को पैदा करने में जो हाथ लगे हुए हैं वो हमसे अलग नहीं है. ठीक है. जैसे वो मेहनत करते हैं ऐसे हम भी मेहनत करते हैं. इन द थर्ड स्टैंजा, रिमेंबर दे हैव आईज लाइक आवर्स दैट वेक ऑफ स्लीप. मीन्स हम सब एक जैसी आंखें रखते हैं जो जागती हैं और सोती हैं. आइज की शेप डिफर हो सकती है, आइज की कलर डिफर हो सकती है, लेकिन हम सबकी आइज सेम वर्क करती हैं जो हमें जगाती हैं और सुलाती हैं. अंडरस्टैंड दैट कैन बी वन बाय लव. मीन्स और ऐसी ताकत जिसे प्यार से जीता जा सकता है. मीन्स हम सब लोग प्यार से एक दूसरे को जीत सकते हैं. इन एवरी लैंड इज कॉमन लाइफ दैट ऑल कैन रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड. मीन्स इस पूरी पृथ्वी पर लाइफ में एक ही चीज कॉमन है, वो है प्यार. ओके. जो हम सबको बांधे रखता है और जो हम सब समझते भी हैं. In the fourth stanza, the poet says, let's remember, whenever we are told to hate our brothers, it's ourselves that we shall dispose. Means अगर हमसे कहा जाता है कि हमें किसी एक पर्टिकुलर कास्ट से, पर्टिकुलर पर्सन से, पर्टिकुलर कंट्री के लोगों से नफरत करनी चाहिए, तो वो हमें इसलिए सिखाया जाता है ताकि कुछ लोग इसका फ़ायदा उठा सकें. तो वो हमें डिस्पोजेस करना चाहिए. मीन्स ऐसे प्रपोजेस को मना करना चाहिए. बीट्रे, उनसे विश्वासघात करना चाहिए. कंडेम, उनकी निंदा करनी चाहिए. रिमेंबर वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर. और हमेशा ये याद रखना चाहिए कि हम उसी भगवान की संतानें हैं और हम एक दूसरे के खिलाफ खुद ही खड़े हैं. एंड in the last stanza, the poet said, it's the human heart that we defile. ये हमारी पृथ्वी है जिसे हम पॉल्यूट कर रहे हैं. by ये दिस पॉल्यूशन मे बी ऑफ इमोशन. पॉल्यूशन केवल ऐसा नहीं है कि केवल एयर पॉल्यूट हो रही है, कि केवल हम अर्थ को गंदा कर रहे हैं. हम इस अर्थ को इमोशनली भी हर्ट कर रहे हैं, सिर्फ सुपर नेचुरली भी हर्ट कर रहे हैं. बाय pollute ideas. Our hells of fire and dust outrage the innocence. मीन्स जो हमारे विचारों की गंदगी है उससे हमारे सबकी इनोसेंस खराब हो रही है.
of air that is everywhere our own. जो हवा हम सबकी अपनी है, हम उसे दूषित कर रहे हैं दूषित विचारों से. Remember, no man are foreign and no country is strange. So that's why you should remember that no one of us is foreign to us, because we share the same earth, same land, same air, same water. And we should keep in mind that we are all alike, so we should not hate each other, and the one who is saying to us to hate each other, we should condemn that idea. The very beautiful line of this poem, that if anybody is pushing us to hate anyone, we should condemn that idea, we should dispose that idea, we should betray with that idea. ओके कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको नहीं मानना चाहिए. We should say no to these negative words. So that's all in the poem. I hope that you understand the poem. Okay, just go through it